Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. Now, say what you may, but our billionaires are going places. The places where nobody has ever been. Well, not exactly nobody has ever been. Nobody private person has ever been. Humanity has been there for at least 50 years. Now, there is a new space race going in the town, and this time, luckily, it is not between the USA and USSR. It is actually between the billionaires of the world. यानी कि इस समय प्राइवेट स्पेस रेस बहुत ही ज्यादा जोरों पे है एंड 2021 वुड प्रोबेबली बी द लैंडमार्क ईयर ऑफ द प्राइवेट स्पेस टूरिज्म। अभी अभी रिसेंटली वर्जिन गैलेक्टिक एक फ्लाइट है जिसके सीईओ हैं रिचर्ड ब्रैंसन। ही वेंट टू द स्पेस एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली स्पेस बट वो बेसिकली अपनी खुद की पर्सनल स्पेसशिप में 80 किलोमीटर हमारे अर्थ के जो सरफेस है उससे 80 किलोमीटर दूर गए थे। उसके जाने के कुछ ही दिनों के बाद अमेजॉन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, ही in his own company Blue Origin, he also went to the space a little bit farther than the Richard Branson, लेकिन इनकी जो फ्लाइट थी वो 100 किलोमीटर तक गई थी। Now, what is the exact boundary of the space is there is no international agreement on it. So some people might claim कि वो 80 किलोमीटर है. There are some section of the people who says कि Richard Branson didn't go, Jeff Bezos basically went, क्योंकि 100 किलोमीटर को कारमैन लाइन कहते हैं, which is ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द स्पेस। बट ये दोनों फ्लाइट थी, ये फ्लाइट 10-10, 15-15 मिनट की थी। तो जेफ बेजोस की जो फ्लाइट थी ब्लू ओरिजिन की, इट टुक from the launching to the landing total 15 minutes. Approximately he was in the space around 100 kilometers approximately for 2 to 3 minutes. But this time really अगर कोई क्लेम कर सकता है कि actually में which is the first all civilian non-governmental space flight, that will be the Elon Musk. Elon Musk की जो कंपनी SpaceX है वो 15 सितंबर को अपनी एक फ्लाइट जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करेगी, which legitimately and for all practical purposes would be the first all civilian non-governmental flights. Now I just told you कि जेफ बेजोस स्पेस के अंदर सिर्फ 3 मिनट के लिए था. This is a flight for 3 days. They'll go into the space, real space, जो officially सबके according space होता है, and will be there for the 3 days. Crew Dragon spacecraft, जो कि SpaceX के द्वारा बनाया हुआ एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है, जो कि इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉजिस्टिक्स का काम करता है, is set to be launched from the NASA's Kennedy Space Center in the Florida in the USA. और ये 4 प्राइवेट सिटीजन्स को स्पेस में लेके जाएगा 3 दिन के लिए। नाउ ये स्पेस सिटीजन कौन है? प्राइवेट सिटीजन। ये चारों की चारों जो सीटें हैं दे हैव बीन बॉट बाय द यूएस बिलियनियर जेरिड आइजैकमैन। इन्होंने शिफ्ट फॉर पेमेंट्स नाम की कंपनी बनाई है। नाउ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हु इज ही, बट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक यू आर गोना रीड अबाउट हिम इन लॉट ऑफ न्यूज, तो मुझे लगा मैं आपको बता देता हूं। जेरिड आइजैकमैन ने इस स्पेस फ्लाइट की सारी चारों की चारों सीटें खरीदी हैं। देयर आर 3 मोर पीपल। वन इज हेली आर्सेनेक्स. She is a childhood bone cancer survivor. Interesting thing about her. And the 2 other people are Sian Proctor and the Chris Sembrowski. जो कि चारों के चारों एक क्रिस सेम्ब्रोस्की इज एक्चुअली वन ऑफ द पर्सन जो कि एक ग्लोबल प्रोग्राम हुआ था, कंपटीशन हुआ था कि कौन स्पेस में जाना चाहता है, एंड ही बेसिकली वन, एंड दीज 4 people have actually been training for the past few months. Now there is a little bit poetic about it because by these 4 people they are trying to exhibit 4 qualities of the leadership, qualities of the hope, generosity and the prosperity. So this leader Jared Isaacman, he's basically the CEO, he's the billionaire, he's actually buying also, he's basically representing the leadership. Haley Arsenex, she's basically a bone cancer survivor, actually the representation of the hope. The Sean Proctor is the representation of the generosity, मतलब कि उन्होंने एक हॉस्पिटल के लिए $200 मिलियन रेज किए थे, एंड क्रिस सेम्ब्रोस्की जो कि एक रियलिटी शो टाइप के कंपटीशन से जीत के आए हैं, he would be representing the prosperity. There is some philosophy to it. To make these mechanical things a little bit poetic is actually good. Nevertheless, जो ये मिशन है, now this is the important part and this is the fun part. मिशन 3 दिन का है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली लाइक ऑल दी अदर स्पेसशिप्स दिस विल एक्चुअली स्प्लैश इनटू द अटलांटिक ओशियन। इंस्पिरेशन 4 575 किलोमीटर पे जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है SpaceX का, दे विल बी ऑर्बिटिंग द अर्थ at the level of the 575 kilometers. For reference, International Space Station 408 किलोमीटर के ऊपर सर्कल करता है, हबल टेलीस्कोप 547 किलोमीटर के ऊपर सरफेस करता है। लास्ट टाइम
ह्यूमैनिटी से या कोई ह्यूमन जब हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने गया था, दैट वाज इन 2009. आफ्टर 2009, नाउ इट इज इन 2021 कि हम हबल टेलीस्कोप से आगे जा रहे हैं, एंड दिस विल बी डन बाय द प्राइवेट इन द सेंस कि इससे पहले जो भी एस्ट्रोनॉट्स थे, दे आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स. वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भेजे जाते हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2002 के बाद से परमानेंटली हमेशा कहीं ना कहीं से ऑक्यूपाइड रहा है. सो देयर हैज ऑलवेज बीन समबडी इन द स्पेस, but that is at the 480 kilometers and all of them are government employees. Dragon module जो है, जो कि ग्रुप यूज करेगा, has specifically been modified for this mission. Usually जो ये SpaceX मॉड्यूल होता है, इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इसको डॉक करना पड़ता है या ज्वाइन करना पड़ता है, राइट. सो उसकी एक सिस्टम में उसको डॉकिंग मैकेनिज्म लिखा हुआ है, डॉकिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है. आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? इंटरस्टेलर मूवी में दैट स्पेसक्राफ्ट डॉक्स विद द अनदर स्पेसक्राफ्ट, काइंड ऑफ लाइक एग्जैक्टली लाइक दैट, उसको डॉकिंग मैकेनिज्म. बट इंस्पिरेशन 4 जो है, उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं जाना. इट विल बी लॉन्च्ड और फॉर 3 days इट विल बी सर्कलिंग द अर्थ एट 575 किलोमीटर्स. तो उसका जो डॉकिंग पार्ट है वो रिमूव कर दिया गया है, एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ डोम विंडो. इस डोम विंडो से चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को देखेंगे. दे विल क्लिक फोटोज एंड विच विल बी एक्चुअली स्प्लैश्ड ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो विंडो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की, इट हैज एक्चुअली बीन इंस्पायर्ड बाय द कुपोला. कुपोला बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक विंडो लगा हुआ है. आप में से जो स्पेस एंथुजियास्ट हैं वो इन फोटोज को जरूर पहचानते होंगे. तो जो ये स्पेस के अर्थ के स्पेस से ऐसे फोटो आते हैं, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम दिस इज अ मॉड्यूल इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको क्यूपोला कहा जाता है. तो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर कि अगर अंदर से होगा तो इस प्रकार की ही फोटो खींचेंगी, काइंड ऑफ हेक्सागोनल टाइप ऑफ, राइट. तो ये मॉड्यूल था. अब जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो कभी पहले जब स्पेस क्राफ्ट के आईएसएस के लिए जाता था तो उसके यहाँ पर ये डॉकिंग मैकेनिज्म लगा रहता था, क्योंकि उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक होना पड़ता था. एट दिस टाइम इट विल नॉट बी डॉकिंग. तो जो ये मैकेनिज्म है इसको हटा के यहाँ पे ये ऐसी विंडो जैसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगी हुई है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ को देख सकते हैं, उसको लगा दिया गया है. वेयर यहाँ से बहुत सारी फोटो आने वाली हैं आफ्टर द 15th of September, रिमेंबर इट. ठीक है. द जर्नी विल ऑब्वियसली प्रेजेंट, they'll collect the large amount of data about the health data. जो आगे के future crewed space missions हैं, US is again trying to go back to moon, India is also trying to go back to space, China is trying to go back to moon, and there are some people who are actually trying to go to the Mars also. तो यानी कि probably this new enthusiasm towards the space might actually make us an interplanetary species. तो आने वाली जो फ्यूचर की जो ये क्रूड स्पेस मिशंस होंगे उनके लिए डेटा कलेक्ट होगा. ऑल दीज 4 पीपल, इनका ECG, एक्टिविटी, मूवमेंट, 3 दिन है वहाँ पर सोएंगे भी, हार्ट रेट, रिदम, जितनी भी जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ऑल दैट विल बी कलेक्टेड. इनके बिहेवियरल और कॉग्निटिव चेंजेस क्या होंगे जर्नी पे, वो सारे के सारे कलेक्ट किए जाएंगे, एंड दिस डेटा विल बी यूज्ड एज द फ्यूचर crewed space. However, that is not the important thing. What the important thing is that now SpaceX can, or the Elon Musk to be more precise, can actually claim that he is the first person to send first private space flight. Looks like space tourism is actually coming to a reality. For now, it is going to be a very, very expensive ticket to space, but nonetheless, it's a good thing for humanity. If you need the PDF of this lecture, this is the Telegram channel that you need to join. You can also like this Facebook page. You can also message me on Insta. You can also join me. I'll see you in the next class.